A disclaimer before we move on to the video. Take a copy and pen with you. अगर तुम इस वीडियो को विदाउट कॉपी और पेन देख रहे हो, you are doing a mistake. इस वीडियो से नोट्स लेना is very important for you if you want to be a successful freelancer. Now that said, let's start with the video. First thing is personal development. Now ये मैंने सबसे पहला पॉइंट क्यों रखा है? Because इसी के बेसिस पर पूरी तुम्हारी trajectory of life डिपेंड करती है. So I'll not blabber about this point a lot because you all know self improvement कितना चलता है और तुमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे प्रोडक्टिविटी सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड. अब मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. But still I'll give you one thing, which is consider you are at this frequency which is 10 hertz and now you want to reach the level of 900 frequency, let's say, जहाँ पे तुमको सारी abundance of wealth मिल जाएगी. Now to reach that level of frequency, you'll have to level up yourself eventually to reach that level. There's a spiritual concept, and in that what you have to do is, in order to reach the frequency of the money, you'll have to operate at that frequency. Now it might sound a little woo-woo and it sounds to me too, but ये concept समझने के लिए अच्छा है. अगर इस चीज को implement करना चाहते हो तो करो, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है. बस concept समझो कि money की frequency अगर 850 hertz है तो तुमको उस level तक जाके उधर उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि money operate कैसे करता है. How does money actually work? Because we don't know how money works. मिडिल क्लास में हम लोगों को मनी को एज एक्सपेंस करने वाला सोर्स दिखाया गया है. मेजरली हम उसको इन्वेस्ट बाद में करते हैं, पहले हम उसको एक्सपेंडिचर्स में डालते हैं, घर के नीड्स में डालते हैं. एंड दैट्स नॉर्मल, एवरीवन डज दैट. बट मनी इज अ टूल टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ. दिस माइट साउंड ऑब्वियस टू सम पीपल, माइट साउंड वू टू सम पीपल, बट इट्स एक्चुअली ट्रू. तुम पैसा कमा रहे हो, बिलियनियर्स मिलियनियर्स पैसा कमा रहे हैं, और अच्छे नॉर्मल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी जो लोग पैसा कमा रहे हैं, दे reinvested into their startups, in themselves or into other ventures that they want to start. बहुत कम profit percentages उनके पास बचते हैं. मैंने इस चीज को, इस मनी वाले फैक्टर को अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम उस वीडियो को देख लेना जाके. So you'll have to raise your frequencies. अब उसमें तुम अपने आपको पुश करो, 30 days चैलेंज करो, 90 days चैलेंजेस करो, नई नई चीजें सीखो. सेल्स नहीं आती, सेल्स सीखो. साइकोलॉजी नहीं आती, साइकोलॉजी सीखो. बट लर्न अबाउट योरसेल्फ, डेवलप योरसेल्फ पर्सनली, बिकॉज इफ यू won't grow. Straight up. Second thing is retainers are always better than one-off gigs. So point is really simple. Retainer equals to monthly recurring revenue. And जब तुम्हारा monthly recurring revenue बढ़ता है, that is more, or I should say that is better than just one-off gigs. And ideal scenarios में always retainers वाले जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं. And this is why companies have subscription models, not one-off lifetime deals. वो बहुत rare scenarios पे तुमको lifetime deals मिलती हैं, क्योंकि उससे उनको loss होता है. Recurring income से Adobe का सॉफ्टवेयर को तुम सब्सक्रिप्शन लो, ब्लैक मैजिक का छोड़ के, DaVinci Resolve का वन टाइम है. मेजरली जितने भी सब्सक्रिप्शन तुम देखोगे, Perplexity, ChatGPT, Dropbox, Drive, anything, any big company's subscription, it is recurring. हर महीने तुम्हारे जेब से पैसा जाएगा, क्योंकि that is what increases their valuation of course. और उनका मंथली उनको पता है कि इतना recurring revenue आता रहेगा. They don't need to worry about let's say next 3 to 4 months, अगर उनको पता है कि क्लाइंट इतने दिनों तक रुकने वाला है. So that's the thing that you'll have to keep in mind. Retainers are always better. One off gigs करो, here and there कर सकते हो, no issues, but retainers पर ज्यादा फोकस करो, अपना ऑफर ऐसे क्राफ्ट करो. थर्ड थिंग इज क्लाइंट्स पे फॉर क्लैरिटी, नॉट योर क्रिएटिविटी. ऑफ कोर्स इट्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. पीपल वुड से भाई मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, आई हैव गॉट इनफ मनी, आई हैव आल्सो गॉट. बट अगर तुमको अच्छी एजेंसी स्केल करनी है, एक बहुत अच्छा फ्रीलांसर बनना है, हाई टिकट क्लाइंट्स लेने हैं, दे विल रिस्पेक्ट योर क्रिएटिविटी. ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू दैट. यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ टेक्निकली बेटर. तुम्हारे को सॉफ्टवेयर आने चाहिए, वो क्रिएटिव स्किल्स आने चाहिए. बट एट द सेम टाइम क्लाइंट शुड बी सर्टेन अबाउट सर्टेन थिंग्स, व्हिच इज योर सिस्टम्स. उनको डिलीवरेबल्स कब मिलेंगे, प्राइसिंग क्या है तुम्हारी, तुम कैसे काम करते हो, व्हाट इज योर प्रोसेस, मेकिंग देम अंडरस्टैंड द होल थिंग सो दैट दे आर नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग इन देयर एंड इन देयर एंड. और उनको पता है कब उनको क्या चीज मिलनी है, कब तुम्हारे साथ फॉलो अप करना है, कब नहीं. एंड मेजरली हाई टिकट क्लाइंट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उनको डेली के मैसेज भेज रहे हो या नहीं भेज रहे हो. इफ यू आर टेलिंग देम कि एक हफ्ते में वीडियो मिल जाएगा, दे विल बी सैटिस्फाइड. स्पेशली विद फॉरेन क्लाइंट्स, दे विल बी जस्ट सैटिस्फाइड कि हाँ एक हफ्ते बाद वीडियो मिल जाएगा, you have updated me, that's all. They won't nudge you in between. The chances of you getting more clients and the client sticking with you becomes a lot. ऐसी चीजें हो जाएंगी तुमको पता भी नहीं चलेगा. क्या पता तुम दूसरी एजेंसी के क्लाइंट चुरा के ले आओ. मत करना यार ऐसा. Another point is outreach. So again तुमने ये देखा होगा मेरे लास्ट के कुछ few recent videos से, मैं टेक्निकल स्किल्स की बात ही नहीं कर रहा. मैं बता रहा हूँ तुमको कि कैसे तुम अदर स्किल्स को रिफाइन कर सकते हो ताकि तुम एक बेटर फ्रीलांसर बन पाओ. एंड दैट इज व्हाट द गेम इज. बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत अच्छे एडिटर्स हैं, अच्छे
लेट्स से ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स। मे बी अगर मेरे वीडियो से तुम इस चीज को ग्रास्प कर पा रहे हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और इस चीज को जाके इंप्लीमेंट करना। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय आउटरीच? मैंने तो आउटरीच बोल दिया। बेसिकली सीन ये है कि अपने टेक्निकल स्किल्स को छोड़ो थोड़े दिन के लिए और आउटरीच, सेल्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इन सबको समझो, सीखो। और इसके लिए मेरे को कमेंट मत करना यहाँ पे कि भाई कुछ बुक सजेस्ट कर दो, कुछ यूट्यूब के वीडियो सजेस्ट कर दो या कुछ कर दो। जाओ, जो रिसोर्स मिल रहा है वहां से सीखो। पेड कोर्सेज लेने पेड कोर्स लो, जो करना है करो। मेरी ई बुक लेनी मेरी ई बुक लो, सॉफ्ट प्रमोशन। मगर द पॉइंट इज इफ यू हैव टू लेवल अप एज अ फ्रीलांसर, you'll have to learn to do outreach and in a way where you can sell your offer in a presentable manner. Now it takes a lot of time to understand that. I agree, it took me a lot of time and I'm still learning, I'm still not perfect. Firstly मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं तुमको ब्लंटली बता रहा हूँ, मैंने अपने ई बुक में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखी हुई है। जितना मेरे को ज्ञान है मैंने सारा उसमें पेल दिया है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो तुमको अगर वो लेना है तुम उधर से ले सकते हो, बट इस चीज को तुम फ्री में पॉसिबली नहीं सीख पाओगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है and how you can learn about human behavior. You have to go out there in the field, try multiple types of outreach, track open rates, track reply rates, positive reply rates, negative reply rates, and then you'll be able to understand कि open rates क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट लाइन अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिप्लाई रेट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब तुमने ऑफर बहुत अच्छे से बना के रखा है, क्राफ्ट करके रखा है, तुम्हारा फॉलो अप सीक्वेंस भी बढ़िया है। सो दिस इज हाउ आई फिगर्ड आउट। आई टुक कोर्स ऑफ अक्षत तोंगिया एंड सक्षम, बोथ हैव जर्नी क्लब, तो उसमें वो सारा मॉड्यूल्स वगैरह हैं उनके। बट आई वुड से यू वोंट गेट प्रोबेबली दिस इन्फॉर्मेशन आउट देयर फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट। यू विल हैव टू पे फॉर दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट्स वर्थ द पेमेंट, और इससे तुमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। सो आई वुड से इफ यू वांट टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक, एक बुक है साइको साइबरनेटिक्स, एंड अभी मैं देख रहा हूँ अपने शेल्फ में और कौन सी बुक तुम्हारे को हेल्प कर सकती है। वन साइको साइबरनेटिक्स, आई वुड से एलेक्स ऑमोजी की 100 मिलियन लीड्स एंड 100 मिलियन ऑफर, जो अभी रिसेंटली 100 मिलियन मनी, आई डोंट नो, तीनों वॉल्यूम्स पढ़ लो, वो हेल्प करेंगी। और यूजुअली जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बुक्स होती हैं, दोज बुक्स आर नॉट जेनरली रिलेटेड टू बिजनेस। इट्स समवॉट लाइक द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, टूल्स ऑफ टाइटन्स। इनसे मैंने छोटे छोटे से नगेट्स लिए हैं एंड देन आई हैव कम अप विद फ्यू थिंग्स, और वो मेरे भाई ब्रेन में फीड हो गई हैं चीजें। इतना सालों से सीख रहा हूँ, इतने सालों से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो फीड होगा ना, इट टेक्स टाइम। सो वो सारी चीजें फीड हो गई हैं एंड दैट जस्ट कम्स अप इंस्टेंटेनियसली। सो यू विल हैव टू ट्रेन योरसेल्फ लाइक दैट, इट विल हेल्प यू। सो बेसिक ये है कि तुम बुक्स से रीड कर सकते हो, फ्री में कुछ तुमको वीडियोस मिल जाएंगे, तुम वीडियोस देख सकते हो। आई हैव नॉट वॉच्ड मेनी वीडियोस रिगार्डिंग दिस। अनदर थिंग इज अ लिटिल मिडिल टिकट विच इज माई ई बुक, उसमें मैंने सारा सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। हाईएस्ट टिकट इज की जो अक्षत तोंगिया और सक्षम की जर्नी क्लब कम्युनिटी है, उसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई डोंट नो एनीवन एल्स जिससे मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। अब जस्ट लाइक डिग डीप इनटू द बुक्स, रैंडम कुछ वीडियोस आ जाते थे। मेजरली लाइक 80% ऑफ द थिंग्स आर जस्ट प्रैक्टिकल। मैंने जो भी सीखा मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, और पायरेट कर लेना कोर्सेज अगर तुम करना चाहो तो। So practical things for every freelancer in this particular point is, as soon as your skill set is good enough, start doing outreach. Just go and start doing outreach, because the more you'll delay it saying कि यार अभी मेरे को आता नहीं है, अभी मेरे को पता नहीं है स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, do it. Some people are so good like me कि वो तुम्हारे emails का genuinely reply कर देते हैं कि your outreach sucks and this is why it sucks. I've replied to many people जिन्होंने मेरे को outreach किया है, किसी की बहुत अच्छी outreach थी, I've complimented them too कि भाई बहुत अच्छी outreach है तेरी। तो अब मेरे को बॉम्बार्ड मत करना ईमेल्स, मैं सारे देखता नहीं हूँ, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट तुम ईमेल करना चालू करो। कुछ क्लाइंट्स इतने अच्छे होंगे तुमको वो बता देंगे कि यार तुम्हारे ईमेल में ये दिक्कत है। तुम अगर डिस्कवरी कॉल पे जाओगे तो तुमको वो बता देंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे को लग रही थी। तुम पूछना क्वेश्चन उनसे कि व्हाई डिड यू चूज मी, व्हाट डू यू थिंक आई कैन डू बेटर। आई आस्क्ड इट टू मेनी क्लाइंट्स एंड उससे भी मेरे को बहुत सारा इनपुट मिला है। सो माय पॉइंट इज, बार बार मैं बता रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारा स्किल सेट गुड इनफ हो जाए, यू नो कि तुम एक स्टाइल ऑफ एडिट या 2-3 स्टाइल ऑफ एडिट यू कैन रेप्लिकेट इट, गो एंड डू द आउटरीच। And I overlooked this point. I was like waiting for the perfect moment and it never came. And there's a quote that I've written is, starting a business is like a declining process. The business never grows, it declines every day. You just have to figure out a way to build a system so good that they outperform the declining rate, resulting in business growth. So basically your business declines every day. You just have to build a system so good कि वो जो decline rate है उससे ज़्यादा, let's say 5% से decline हो रहा है, तुम 8% से अपने systems better कर चुके हो और वो increase हो रही है progress
प्रोग्रेस, सो डिक्लाइन रेट विल कैंसिल आउट। तो 3% प्रोग्रेस हो रही है तुम्हारी। लिटिल टेक्निकल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस जस्ट स्किप इट। अनदर पॉइंट इज ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। इसके बारे में मैंने ब्लैबर किया अपने पिछले वीडियो में। फर्स्ट एवर पॉइंट उस वीडियो में यही था, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। जाओ उस वीडियो को देखो जाके, उससे भी नोट्स लेना। और एक प्लेलिस्ट है ट्रेजर फॉर फ्रीलांसर्स एंड वीडियो एडिटर्स करके, उस प्लेलिस्ट को देखना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर एज अ फ्रीलांसर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दैट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कि लास्ट के 2 पॉइंट्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इट टेक्स टाइम। इस चीज को भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हर किसी को पैसे कमाने हैं, आई अंडरस्टैंड। हर किसी को स्ट्रेस फ्री तरीके से पैसे कमाने हैं, आई अंडरस्टैंड। फ्रीडम चाहिए सबको, बट इट टेक्स टाइम एंड पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट। इफ यू कैन ग्रास्प दिस पॉइंट एंड बी पेशेंट विद द रिजल्ट्स एंड इम्पेशेंट विद द एक्शंस, बिलीव मी, तुम कोई भी चीज करो, फ्रीलांसिंग तुम्हारे लिए वर्क करे ना करे, कोई और बिजनेस करना चाहो, स्टार्टअप करना चाहो, इट विल वर्क। जैसे ही लोगों को पहला साइन दिखता है डिफिकल्टी का किसी भी चीज में, व्हेनेवर दे सी कि यहाँ पे मैं आउट ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, या यहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है क्योंकि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दे जस्ट क्विट एंड दे गो इनटू द लूप होल ऑफ वॉचिंग रैंडम यूट्यूब वीडियोस, वॉचिंग रैंडम ट्यूटोरियल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, कि भाई मैं ही गलत हूँ या ये इंडस्ट्री ही गलत है, इस इंडस्ट्री में पैसा है या नहीं है। हर किसी इंडस्ट्री में पैसा है, इफ यू आर विलिंग टू गिव योर टाइम एंड एफर्ट टू इट। तुम्हें यार एटलीस्ट 4 से 5 साल तो देने होंगे। अब तुम कहोगे भाई 4 से 5 साल, यार मेरे को 5 साल लगे इस यूट्यूब चैनल को यहाँ तक लाने में। 5 चैनल्स फेल कर चुका हूँ मैं, तब ये 6 चैनल स्टार्ट किया एंड देन आई फाइनली सक्सीडेड। इस एजेंसी को भी टाइम लगेगा। फ्रीलांसिंग में आई हैव ग्राइंडेड अ लॉट डे इन एंड आउट, देन ओनली आई वाज एबल टू डू इट इन 1 ईयर। और उसके पहले से भी ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैड अ लॉट ऑफ स्किल सेट व्हिच वाज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू द कैमरा। बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना 10 तक इट्स अ लॉट डिफिकल्ट। आई थिंक वॉरेन बफे ने ये चीज कही है कि फर्स्ट $100,000 फॉर यू इज द हार्डेस्ट एंड देन आफ्टर दैट एवरीथिंग जस्ट बिकम्स इजी। सो या, इनिशियल फेजेस आर ऑलवेज द हार्डेस्ट एंड इट विल टेक टाइम, रिमेंबर दिस। एंड अब ये मेरा लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, एंड दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। अब ये लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये मैंने कवर करके रखा है। इसका मतलब ये नहीं है ये प्रायोरिटी नहीं है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो, सॉफ्ट स्किल्स मैटर अ लॉट। नाउ अब तुमको सॉफ्ट स्किल्स की ब्लैबरिंग, बेसिकली मेरे को रैंट करते हुए सुनना है कि कौन से सॉफ्ट स्किल्स तुमको आने चाहिए, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेवलप देम। तुम 2-3 वीडियोस में लिंक करूंगा, उनको देख लेना। मैं तुमको नाम बताता हूँ। अरे महारा रोटूब चैनल किधर है? रोटूब चैनल, रोटूब द मृदुल, कुछ भी को द मृदुल बंदा बढ़िया है। पहला वीडियो है डोंट ओवरलुक दिस और यू विल स्ट्रगल इन योर 20s फॉरएवर। सेकंड वीडियो है अवॉइड दीज टू मेक मोर मनी इन फ्रीलांसिंग इन 1 ईयर। थर्ड वीडियो है वॉच दिस इफ यू विश टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। फोर्थ वीडियो है 24 मिनट्स ऑफ फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास टू लर्न फ्रीलांसिंग फ्री। फिफ्थ वीडियो है इट टुक मी years to learn these 3 simple yet powerful skills. Sixth video है the most raw and brutal advice if you want to start freelancing. Seventh video है 2.5 years of freelancing knowledge in 15 minutes. And that's pretty much it. So अगर तुम ये सारे वीडियोस देख लोगे you will understand what I'm talking about, what do I mean by soft skills, और अदर भी चीज़ें तुमको मिलने को दिख जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी, तो तुम उनके भी नोट्स लेके रखना। Yeah, that's pretty much it that I have in this video for you. सारी चीज़ें implement करना, make sure if you have not noted down anything, note down and watch the playlist that I've recommended for you. And if you want to buy the ebook, the link is in the description and the pin comments, और शायद ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तुम वहां से ebook बाय कर सकते हो। एंड ebook के बारे में और जानना है तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उस वीडियो को देख लेना। You'll understand how this ebook will help you achieve your freelancing goal faster. So yeah, that's pretty much it. I hope you enjoyed the video. I enjoyed making it. And जो भी लास्ट तक देख रहा है, I'm grateful for you all. बहुत कम लोग ऐसे brutal और raw talks में टिकते हैं एंड तक। और हाँ, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट करना कि मैं लास्ट तक देखा हूँ, तो मेरे को पता चले कि कौन कौन लास्ट तक देखता है। चलो ऐसे आज पता लगेगा, सर्वे कर रहे हैं भाई अब कौन कौन देखता है, कौन कौन सब्सक्राइबर है मेरे बढ़िया वाले, है ना। चलो बाय बाय गाइस, सी यू। एंड क्लाइंट सर्विस सैटिस्फैक्टर सर्विस फुलफिलर क्या होता है? मैं शब्द भूल गया हूँ, हद है। कौन कहेगा मैं एक अच्छा फ्रीलांसर हूँ।